हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आई होप आप लोग अच्छे हो, मजे में हो और अपना काम कर रहे हो। चलो, फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चंस. So the first one that I have picked is from SBT, and that is this is a question of level 2, but again you don't need to do much in this question. It may feel something like lengthy or something, but this is not that much, I would say. So we will simplify it. For that, we will first read the question, understand the question, and then apply the concepts, and then solve finally. Chalo. So let's start. There is a uniform chain of mass m naught. Uniform chain कहने का मतलब mass per unit length of the chain is constant. Done है? So mass is uniformly distributed along the length of the chain, and length is what? L. This rests on a rough incline with its part hanging vertically as shown in the figure. So this inclined surface is not smooth, it is rough. Okay, the chain starts sliding up the incline. Now this is significant. ये जो chain है, it starts sliding up. In which case, provided the hanging part equals n times the chain length. So this hanging part, if this is n times the chain length, if this is nl, it means this length is equal to nl minus nl. In this case, I mean, the person will observe that this system started sliding up. Done hai? Now, what is the work performed by friction by the time chain slides completely off the incline? So जब ये completely नीचे की तरफ गिर जाएगा आकर, then we are asked कि friction ने कितना work किया है. Neglect the dimension of pulley and assume it to be smooth. So इस pulley का dimension को neglect करना है, pulley smooth है, so we don't need to worry about this pulley thing in short. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हमें सिस्टम को समझने की जरूरत है. अब आप ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, इफ दिस इज रफ एंड दिस इज दिस, डन है. एंड नेचुरली यू नो mg का वन कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा विल एक्ट इन द डाउनवर्ड सेंस, राइट, एंड फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग इन द अपवर्ड सेंस हियर. डन है. सो इस केस में ना एक्सटर्नली इफ यू गिव इट सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन, maybe in that case it will slide down, or maybe here mg sin theta is greater than f or just equal to f, in that case it will slide down. But here is the case of sliding up. अब देखो स्लाइडिंग अप कब होगा, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक अपवर्ड सेंस में भी लग रहा हो. और यहाँ पे ये जो चेन है ना, इस पे अपवर्ड सेंस में एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा होगा. सो लेट्स ट्रीट इट लाइक दिस. आई मीन, at this instant when nl amount of length is hanging down, it is said that this chain starts sliding up. So इस केस में मैं इस सिस्टम को देखो ऐसे बना रही हूँ. I hope you will be able to appreciate it. So let's draw it. Suppose कर लो L minus NL लेंथ ऑफ चेन के मास को मैंने स्मॉल m मास लिखा, इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया. सो बेसिकली जो इतना लेंथ है ना, इसके लेंथ के मास को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया, एंड देन आई एम कनेक्टिंग इट विथ थ्रेड. And then what is happening here is pulley, and then again there is another mass hanging. Let's call it capital M, and that mass is mass equal to the mass of NL length of the chain. So this question is like this. अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन ऐसा है. सो यहाँ पे जो L माइनस NL लेंथ ऑफ जो चेन है ना, उस पे तुम्हारा अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन फोर्स बेसिकली. And that tension force, if it is just a slipping case, in that case this tension force will be equal to mg. So here mg will be m will be equal to how much? Let's say mass per unit length, of for the chain is lambda. So in that case this capital M will be equal to, चलो इसको कुछ ऐसा जनरल लेते हैं, ठीक है. सो कैपिटल M क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता है, लैम्डा एन एल and G. This is tension, right? So this tension is getting applied on this uh, part of the string that is resting on the inclined plane, okay? और इसके ऊपर नीचे की तरफ इसके मास की वजह से mg sin थीटा लग रहा होगा, एंड सिंस इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड अप, फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन. ठीक है. और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू एन. और आपको पता है कि mu, if you know the mu, then n here will be equal to how much? So normal reaction acting on this mass will be equal to mg cos theta. So f is equal to mu mg cos theta. Done है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है. At the point of just sliding up,
नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड बट वी आर आस्क्ड कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है। अब देखो फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है ये आप कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जैसा मैंने यहाँ पे बना दिया। बिकॉज इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन दैट केस what is lying on the incline is always having mass of a small m, constant mass मैंने लिया। but this diagram I have made just at the point when this system has tendency to slide up. At that point of time, mass on incline I have written as a small m and hanging down as capital M. लेकिन with time what will happen, this small m is going to change, this capital M is going to change, and if this small m is going to change, it means normal reaction is going to change, and if normal reaction is going to change, friction is going to change. Done it? And we are asked a work done by the friction force. So friction force क्या work करेगा, कैसे निकालोगे आप? So work done by friction force को आप simple ऐसे लिखोगे F dot dx, right? And friction force is acting along the incline, right? So incline के along displacement कितना होगा आप देख लो इधर। let's say at any point of time ये वाला लेंथ क्या है तुम्हारा, सॉरी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सपोज कर लो इस पे लेंथ x है और हैंगिंग लेंथ को x ले लो, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। सो एक्चुअली यहाँ पे जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। इनिशियली इट विल बी nl, क्योंकि जब nl था देन इट स्टार्टेड स्लाइडिंग अप, एंड एट दैट पॉइंट फॉरवर्ड ओनली फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग। सो फ्रिक्शन का वर्क डन कब से काउंट होगा, व्हेन x विल बी nl एंड बियॉन्ड, राइट? सो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, nl से कंप्लीट लेंथ जब फॉल कर जाएगा तो x l के बराबर हो जाएगा। सो nl टू l। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर हमें लिखना है ना f डॉट dx, एंड दिस f इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू mg cos थीटा, एंड दिस mg cos थीटा, आई मीन दिस फोर्स के ऊपर अगेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यू कैन सी हियर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन इज इन डाउनवर्ड सेंस, सो यहाँ पे माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डॉट dx, सॉरी dx, राइट? बट हियर m इज अ वेरिएबल, और m को आप क्या लिखोगे, अगर किसी भी इंस्टेंट पे आपने x लेंथ हैंगिंग लिया है, सो दिस विल बी l माइनस एक्स लैम्डा, राइट? सो दैट वे वी विल सॉल्व इट। डन है? So this is what is given in the question. This is the whole analysis of the question. Now we need to calculate it. अब देखो work done तुम्हें निकालना है, simple इसको integrate करना है, कुछ नहीं करना और तुम्हें, done है? So this is the small work done for dx displacement. Total work done के लिए you just need to integrate it. But there is one more thing. Mu is not given in the question. आप ध्यान से देखो mu दिया है क्या? नहीं दिया है. But we can calculate mu. From where? From this information given. क्या गिवन था हमें? हमें गिवन था कि ये जस्ट लाइड अप कब करने लगता है, जब पार्ट ऑफ हैंगिंग चेन इज हाउ मच, n times length, right? So at that point of time if we write equation, उस point of time पे अगर आप equation लिखते हो, you will say that downward force is exactly equal to the upward force. So उस केस में मैं क्या करूंगी, I mean if it is nl, then this is l minus nl. Let's replace the mass of this l minus nl thing by this, and then this will become simply a string, and this will simply become a mass m, जिसका मास कितना होगा एन एल लैम्डा। सो इस पे फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड, एन एल लैम्डा जी, एंड सो टेंशन हियर विल बी इक्वल टू हाउ मच, स्ट्रिंग है तो टेंशन यू नीड टू काउंट, सो टी इक्वल टू, अगेन टेंशन इज ऑल्सो वेरिएबल थिंग हियर, क्योंकि जैसे जैसे चेन नीचे की तरफ आता जाएगा टेंशन बढ़ता जाएगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टी इक्वल टू हाउ मच, एन एल लैम्डा जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मास। सो हियर टेंशन टी, हियर इट इज इसका मास आप कुछ भी स्मॉल m ले लो, इस लेंथ का मास। सो दिस इज योर mg sin थीटा, एंड दिस इज हाउ मच, this will be, this is mg, so this is your mg cos theta, and then friction is the in the downward sense. Now in this case f plus mg sin theta किसके बराबर होगा, आप लिख लो f plus mg sin theta will be equal to how much, दैट शुड बी इक्वल टू टेंशन। अब एफ का वैल्यू आप पुट कर दो, म्यू एन। सो म्यू एन का वैल्यू क्या रखोगे, एम जी कॉस थीटा, सो म्यू एम जी कॉस थीटा, एम का वैल्यू मैं लास्ट में पुट करूंगी, प्लस एम जी साइन थीटा
इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन को आप क्या लिखोगे, ऐसे तो टेंशन ये आया है, सो टेंशन को मैं अभी लिखती हूँ कैपिटल एम जी। एम का वैल्यू क्या है तुम्हारा, एम का वैल्यू है ये, दिस इज एम, and what will be small m, that is lambda l 1 minus n, we will put it in the last। ठीक है, so this is this। अब देखो म्यू का वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, म्यू हमें दिख रहा है mg माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय हाउ मच, mg cos थीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, जी जी को कैंसिल कर दो हर जगह से। नाउ कैपिटल m का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी एन एल लैम्डा, ठीक है, एन एल लैम्डा माइनस एम, दैट इज योर लैम्डा एल 1 माइनस एन, एंड देन दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय हाउ मच एम, दैट इज अगेन what is that, lambda l 1 minus n, and this is equal to cos, this is cos theta, right? So mu is this। अब आप यहाँ से किसको कैंसिल कर सकते हो, फटाफट कैंसिल कर दो, लैम्डा l को आप हटा दो हर जगह से। सो म्यू का वैल्यू हमें क्या मिला, अब आप मुझे इजीली आंसर कर सकते हो कि मैम म्यू जो है ना वो हमें मिला है एन माइनस 1 माइनस एन साइन थीटा divided by 1 minus n cos theta। So this is the value of mu you have got। अब चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। so मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, now I will simply write it। so work done by friction we are asked, so that will be equal to minus f dx, ठीक है। और फ्रिक्शन को आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शन को लिखोगे म्यू एम जी कॉस थीटा dx। m को क्या लिखोगे, एज ए फंक्शन ऑफ x, सो माइनस म्यू, अगर किसी भी इंस्टेंट पे ये x लेंथ है, दिस विल बी l माइनस एक्स लेंथ। सो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा इस मास के लिए आपने लिया है, सो मास ऑफ l माइनस एक्स दैट इज स्मॉल m, सो स्मॉल m एज ए फंक्शन ऑफ x इज l माइनस एक्स लैम्डा, ठीक है। सो यहाँ पे आप पुट कर दो l माइनस एक्स लैम्डा g cos theta dx। now whatever is constant just take it together, so lambda g cos theta mu, so mu lambda g cos theta minus sign के साथ, and this is l minus x dx। so if we have to calculate total work done, we will integrate it। now integration, I mean x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, it started coming down when x was equal to how much, nl। so this is nl, and when the whole length has fallen through this height, you will say x is equal to how much, l। so you simply integrate it, you will get the answer and then put the value of mu। म्यू हमें मिल चुका है, राइट। सो वर्क डन क्या लिखोगे आप, माइनस म्यू लैम्डा जी कॉस थीटा, एंड एल माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिखोगे, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस वेरिंग फ्रॉम एन एल टू एल। सो व्हाट विल बी द थिंग, आप लोग इनफ स्मार्ट हो, वैसे कर तो लोगे, बट फिर भी चलो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो दैट इज माइनस म्यू लैम्डा जी कॉस थीटा, एंड इफ यू गोइंग टू पुट द वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या होगा, देखो एल पुट करोगे, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, सो दैट विल बिकम योर एल स्क्वायर बाई टू माइनस, नाउ पुट द एन एल थिंग, सो दिस विल बिकम एन एल का स्क्वायर, सो एन एल का स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, सो राइट हियर एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो, नाउ दिस इज माइनस म्यू लैम्डा जी कॉस थीटा, एंड इसको आप सॉल्व कर लो एक बार, एल स्क्वायर बाई टू माइनस दिस विल बिकम हाउ मच, चलो माइनस मैं ब्रैकेट ब्रेक करती हूँ एंड देन आई विल राइट इट, टू एन एल का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हाउ मच, एन स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, राइट। सो इसको ब्रैकेट में अभी रहने देते, माइनस ही रहने दो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक टू आउटसाइड, माइनस म्यू लैम्डा जी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू हाउ मच, एल स्क्वायर माइनस टू एन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर। कुछ अजीब अच्छा सा दिख रहा है ये, और अच्छा सा क्या दिख रहा है, म्यू लैम्डा जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू, इस ये देखो क्या है, ये है तुम्हारा एल माइनस एन एल का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस टू एन एल स्क्वायर, यस। सो दिस इज नथिंग बट एल माइनस एन एल का होल स्क्वायर। अगेन एल को आप कॉमन ले लो, आफ्टर दैट यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू।
So mu lambda g cos theta divided by 2, and this is equal to how much? L को common ले लो, so that will give you L का square. So L का square यहाँ कर दो, and this is 1 minus n का square. Putting the value of mu, you will get the work done by friction. So I hope you have understood this system. This system was beautiful in the sense कि यहाँ पे variable system, variable mass system is kept on the inclined surface. ठीक है? So this was a bit interesting, I would say, and we need to analyze such questions. I mean, it's not difficult, but it's important that you come across such questions so that you can have this thing in your mind कि ऐसा भी system हो सकता है. Done it? So I hope you have understood it. But if you have doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you.